کہ کہہ رہا ہے. چلے اس بات کو رہنے دیجئے. میں اس بات کو انشاءاللہ آخری کے چند لمحوں میں 1 سے 2 منٹ میں اپنے جوانوں سے اور یہ اپنے بچوں سے ایک مرتبہ خطاب کروں گا, ٹھیک ہے نا. حیدر بھائی بس تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. آئیے پہلے صادقین پہ آ جائیے, پھر تقوی کی بات ہو جائے, تاکہ ایک اصلاحی بات بھی, ایک تبلیغی بات بھی بچوں تک ہو جائے, تاکہ وہ جو اتنا فرض ادا ہو رہا ہے وہ بھی فرض ادا ہو جائے. صحیح ہے نا عزیزان محترم. تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو اے علی والو, اے علی سے محبت رکھنے والو. ایسے ہی ہے نا, اے محبت علی رکھنے والو. میں کیا کروں, میں دل چاہ رہا ہے ایک روایت پڑھنے کا, لیکن وقت مجھے ذات نہیں دے رہا ہے. میں بس آگے بڑھ رہا ہوں. مجھے وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے صادقین پہ بھی گفتگو کرنی ہے. تو چلے آپ 1-2 جملے میں سن لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 2 جملوں میں مختصر روایت کو جتنا مختصر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ رسول مجمع میں آ کر فجر کی نماز پڑھا کر, ایک مرتبہ چونکہ آئیے بات تو سنیے گا, فجر کی نماز پڑھا کر ایک مرتبہ مخاطب ہوتے ہیں صحابیوں سے, غیروں سے نہیں, صحابیوں سے. ایسی بات ہے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے صحابی تو ہوگا نا, اس سے کم درجے کا تو نہیں ہوگا نا. مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے دیکھا کس کو, اپنے چچا حمزہ ابن عبد المطلب کو اور اپنے بھائی جعفر ابن ابی طالب کو. دیکھ رہے ہیں, اور دیکھا میں نے کیا دیکھا, ان کے آگے تشت رکھا ہوا ہے, تشت میں بیری کے پھل تھے, انہوں نے تھوڑے سے پھل کھائے, پھر اچانک بیری کے پھل بدل کر انگور بن گئے, پھر انہوں نے انگور کھائے, پھر بدل کر خرما بن گئے, خرما یعنی وہ کھجور بن گئے, پھر انہوں نے وہ کھائے. اور اس کے بعد جب میں نے جا کر پوچھا کہ یہ جو عمل ہوا ہے, کبھی بیری کے پھل انگور بن رہے ہیں, کبھی انگور خرما بن رہے ہیں, تو یہ کیسے, یہ جو چیز مل رہی ہے, یہ جو صلہ مل رہا ہے, یہ کیسے, کس طریقے سے. تو دونوں نے عرض کی کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے, اے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, ہم نے جو عمل افضل ترین, رسول نے پوچھا ایسا کون سا عمل افضل قرار پایا تم لوگوں نے جس کا یہ صلہ تم لوگوں کو ملا ہے. تو ایک مرتبہ رسول سے وہ دونوں مخاطبوں کے کہتے ہیں یا رسول اللہ افضل عمل آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے, آپ پر ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, لیکن ہم نے جو عمل بہترین عمل قرار پایا ہے نا, وہ آپ پر درود بھیجنے پر جس کا یہ صلہ ملا ہے. رکیے گا تیسری دیکھیے گا, تیسرا کیا ہے, 3 بتائے ہیں. پہلا کیا ہے, پہلا آپ پر درود بھیجنے پر جس کا صلہ ہمیں یہ ملا ہے, جو چاہتے ہیں وہ آ جایا کرتا ہے, جو چاہتے ہیں وہ آ جاتا ہے, جو خواہش کرتے ہیں وہ مل جاتا ہے. دوسرا پانی پلانے کا جو ثواب ہے وہ اس پر کہ جو چاہتے ہیں وہ مل جایا کرتا ہے. تیسرا آپ کے بھائی علی کی محبت کو دل میں بسانے پر. جملہ سنیے گا, جو بہت تیزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بہت تیزی کے ساتھ جملہ ادا کر رہا ہوں. دیکھیں عزیزان محترم, ہوا ماتا ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں. کیا دن چل رہے ہیں, کیا کون سا مہینہ چل رہا ہے, سفر کا مہینہ چل رہا ہے. سفر کے مہینے کا اشرہ کون سا ہے, وہ اشرہ ہے کہ جہاں لوگ مشی کر رہے ہوتے ہیں, نجف سے کربلا جا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا, بات پہنچ رہی ہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, تازہ مثال دے رہا ہوں, جو چاہتے ہیں وہ مل جایا کرتا ہے, جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے. یعنی علی کی محبت ایسی محبت ہے جو تمنا کرو مل جاتا ہے. اگر یقین نہیں آتا کبھی نجف سے کربلا چل کے دیکھ لو, جو چاہو گے ملتا چلا جائے گا. علی مولا بات پہنچ گئے تو بہت تیزی کے ساتھ جملے ادا کر رہا ہوں. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون ہے سچے, کون ہے سچے, اے علی والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے, صحیح ہے نا, سچوں میں سے نہیں ہونا ہے. ہاں یہ بات تھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی. سچوں کے ساتھ ہونا ہے, اور آسان کروں, سچوں کا دامن تھام کے چلتے رہنا ہے. ایسا نہیں ہونا کہ سچوں میں سے ہو جاؤ. اچھا بے سے ہوتا نا تو ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا من الصادقین.
सच्चों में से हो जाओ। देखिए मिना सादिकीन नहीं आया, क्या है? सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी साथ का मतलब यह है कि आप सच्चे नहीं हो सकते। बात पहुंच रही है? नहीं, मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं सादी सी बात कर रहा हूँ भाई। मैं अपने कहने का जिम्मेदार हूँ, किसी के समझने का जिम्मेदार नहीं हूँ। सही है ना? मैं पूरी गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं उस बात का, आपको कुछ भी समझे। सच्चे नहीं हो सकते आप, लेकिन सच्चों के साथ हो सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि कुछ सच्चे ऐसे हैं कि जिनमें कोई शामिल नहीं हो सकता। सही है? कोई सच्चे ऐसे हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका, लेकिन आप बहुत ही एहतियात से एक जुमला कह रहा हूँ। देखें, सच्चे की तारीफ देखिएगा। अली वाले हैं ना आप, तो आप सच्चों के साथ होना है। आप लोगों ने ही तो सच्चों के साथ होना है ना, और किसी तो ने थोड़ी होना है। आयत तो आप लोगों के लिए आई है, गैरों के लिए थोड़ी आई है। आप लोगों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ कैसे होना है? तो पहले तो पता तो चले सच्चे कौन है। हमें तो हर गली के कोने पर एक सच्चा मिल जाया करता है। क्या करूं मैं कुछ, हमें तो हर कोई सच्चा सच्चा कह के कह रहा होता है, ये भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं, वो भी सच्चे। किसके साथ होना है? कौन से वाले सच्चे? किसके साथ होना है? तो आप सच्चे देखते हैं, सच्चे कौन है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब सच्चे कौन है? देखिए, सच्चे की तारीफ, पहली तारीफ, सच्चा वो है कि जो बोले तो सच बोले। सच्चा वो है ना जो बोले सच बोले, झूठ ना बोले। ऐसा ना हो कि झूठ बोल रहा हो और उसे सच्चा कह दिया जाए। जो बोले सच बोले, पहला सच्चा। सच्चे देखिएगा। अब जरा ईमान से बताइएगा, इसको और आसान कर दूं। यानी सच्चा वो है कि जो देखे वो बोले। सही है? जो हुआ हो वो देखे और बोले, ये सच्चा है। एक आसान सी मिसाल आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। मिसाल ज़रा थोड़ी ऐबदार है, तो इसलिए अपनी ज़ात पे रख रहा हूँ, वरना किसी और के लिए होती। हुआ ये कि अभी ये मेन रोड है आपका, मुझे रोड का नाम याद नहीं है, लेकिन इस मेन रोड पे एक अचानक गाड़ी आई, तेज़ रफ्तार से चलती हुई आ रही है। बेचारा एक बाइक वाला इस गली से निकल रहा था, गाड़ी वाले ने बाइक वाले को मारी टक्कर, एक एक्सीडेंट। और उसके बाद वो ज़रा थोड़ा आगे निकला, कुछ लोगों ने देखा, शोर मचाया, पीछे भागे, आगे पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। किसको? गाड़ी वाले को। ये जनाब मौके वारदात पे इंतकाल कर गए। सही है ना? माजरत, थोड़ी मिसाल में तब्दीली करो। कुछ लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा कि अचानक एक गाड़ी ने मारा। सही है ना? गाड़ी आगे गई, उधर किसी सूरत पकड़ लिया गया, तेज़ रफ्तार की बाइक जैसे भी है। यहाँ इंतकाल हो गया भाई साहब का। परवरदिगार जो जिनकी मौत लिखी हुई थी, लोग आए, क्या हुआ जनाब? मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। बात पहुंच रही है? मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। सही है? अच्छा जी, सही है। अब इतने में पुलिस वाले आ गए, जनाब हाँ भाई ये बेचारा कैसे मारा? वो हमने कोई गाड़ी पकड़ी है, उस पे भी डेंट वेंट है, मुझे लग रहा है कि इसने मारी है। किसी ने, कोई ऐनी शाहिद है, किसी ने देखा है अपनी आंखों से कि क्या नाम है इसने मारा हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता। सही है ना? बात पहुंच रही है? यार अब ईमान से बताइए, मैं सच्चा हूँ? खुल के बताइए। मैं कोई क्या नाम है आपको थोड़ी, मैं जो आपको कज़िया जो आपको आपके सामने हाल पेश किया है, उस हाल में मैं सच्चा हूँ? नहीं हूँ ना, तो डर किस बात का है? नहीं हूँ ना। यानी जो अपनी आंखों से देखे वो कहे, तो ये है सच्चा। और अगर उसको छुपा ले तो वो है झूठा। अब बात पहुंच गई है, तो अब एक जुमला कह रहा हूं। सवालात का मजमा था, नबी का हाथ बुलंद था, अली का को हाथ पकड़े हुए थे और कह रहे थे मन कुन तो मौला हो फहाज अली मौला। लेकिन कहने वाले लिखने वाले 110 मिलते हैं, बाकी कहां गए?
دیکھو 1.25 लाख के मजमे में, 1.25 लाख के मजमे में अब 110 लिखने वाले हैं कि हमने देखा कि गदीर के मैदान में। तो ये है सच्चा, ये है सच्चा। तो अब जरा ईमान से बताइए, इन सच्चों में आप और मैं शामिल हो सकते हैं? किन सच्चों में? जो सच बोले, जो हमेशा सच बोलते हो, क्या शामिल हो सकते हैं? ईमान से बताऊं, हो सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। जो हालात, जो वाक़या हुआ था ना, उसको मैं बयान कर सकता था कि ये हुआ था। आपके और मेरे इख्तियार में है, हमारे कब्ज़े, हमारे इख्तियार में है। हम लोग इस ताकत रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम सच बोल सकते हैं। हम हर कदम पर, हर जगह पर हम सच बोल सकते हैं। क्या कुछ नहीं है ज़्यादा, जहाँ झूठ बोलने का दिल चाहे वहाँ झूठ ना बोला जाए। इमाम को हाजिर व नाजिर जानते हुए, खुदा को हाजिर व नाजिर जानते हुए, बस अपने नफ्स को मारते हुए सच बोलते जाए। कोई मुश्किल है? तो अब ईमान से बताए, सच्चे हो गए ना? अब आप भी सच्चे हो गए, मैं भी सच्चा हो गया, सब सच्चे हो गए। अब ईमान से बताइए, हमको ये वाले सच्चों के साथ होने को कहा है? बस ये मैं आपकी खिदमत में लाना चाहिए। यानी अब जो सच बोलता हो ना, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, जरा से सच्चा ढूंढ लीजिए, बहुत सारे सच्चे मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा सच्चा है उसके साथ नहीं होना है। अगर कोई ऐसा सच्चा है ना तो उसके साथ नहीं होना है, उसका दामन नहीं थामना है, उसको नहीं मानना है। सही है ना? अगर कोई ऐसा सच्चा है, फिर कैसा सच्चा? अब इसी में एक और सच्चा दिखा रहा हूँ, इसी में एक और सच्चा। देखें, मासूम की हदीस भी है। मोमिन की सिफत है क्या? सिद्क़िल हदीस व अदाइल अमाना। मोमिन की सिफत बयान हो रही है कि मोमिन वो है जो बात करने में सच्चा हो और अमानत देने में अमानतदार हो, यानी अमानतदार हो, यानी अमानत में खयानत ना करता हो। ये मोमिन की सिफत है, ये है सच्चा। अब एक और सच्चा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक सच्चा वो हो गया जो बोले वो सच बोले। नहीं, अगला जुमला बहुत आसान से कर रहा हूँ, जो हो वो बोले। मुख्तसर कर रहा हूँ मैं, अभी मजीद आपकी खिदमत में लाना चाह रहा था लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। जो हो वो बोले, ये है एक सच्चा। सही है? अब एक सच्चा वो है जो बोले वो हो जाए। एक सच्चा वो है जो हो वो बोले, उसे सच्चा कहते हैं। एक सच्चा वो है जो बोले और हो जाए। तो अब ये बताइएगा कि कोई ऐसा शख्स है कि जो यहाँ पर या आलम इस्लाम में कहीं पर भी रसूल के ज़माने से लेकर बाद रसूल कोई है ऐसा रसूल के बाद से है ऐसा जो बोलता चला जा रहा हो और वो होता चला जाए? है कोई लोगों के दरमियान में ऐसा? है कोई? मैं बताऊं, है कोई और नहीं है। मैं आसान सी मिसाल दे रहा हूं। बच्चों ने जिद की, अम्मा कल कपड़े चाहिए, ईद का समा है। माँ ने कहा कल दर्जी आएगा, ईद आई है। सुबह दरवाजे पर जो आया वो दर्जी नहीं था,